قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی کافر ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی منافق ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی مشرک ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے قرآن پاک کی اس آیت پر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی کافر ہیں۔ اس کافر میں آپ بھی شامل ہیں، اس کافر میں میں بھی شامل ہوں، مشرک ہم بھی ہیں، آپ بھی مشرک ہو، منافق ہم بھی ہیں، آپ بھی منافق ہو۔ ذرا غور کیجئے قرآن پاک کی آیت سے، ہم کیوں یہ کہتے ہیں کافر کوئی اور ہے، ہم کیوں یہ کہتے ہیں مشرک کوئی اور ہے، ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ منافق کوئی اور ہے؟ ابھی آپ نے تراویح کے دوران قرآن پاک سنا، اس تراویح کے درمیان قرآن پاک سنا، جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالیے، اللہ رب العزت نے سزا بتا دی ہوگی، فلاں آدمی کی یہ سزا ہے، فلاں آدمی کی یہ سزا ہے۔ کیا وہ امپلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کو لاگو کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اسی اعتبار سے ہے، آپ کو کوئی آ کے پڑھا دے، آپ کو کوئی آ کے سنا دے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو آج کی رات میں 10 نوافل ادا کرنے ہیں اور آپ پڑھ نہیں رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں زور زور سے چلانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی آج امت مسلمہ نے قرآن پاک سے کیا ہے۔ کہنے والا اور پڑھنے والا زور زور سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اللہ نے یہ بات بتائی ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہم بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے ظالم مسلط ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اور وقت آن ہے، وقت آن ہے کہ اللہ جس اعتبار سے بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا تھا اور فرشتوں اور نبیوں کو ٹھکرایا تھا، ان کا قتل کیا تھا، اسی اعتبار سے امت مسلمہ نے بھی اللہ کے قرآن سے وہی کیا ہے اور نبیوں کے ساتھ وہی کیا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، ہمارا جوان کہتا ہے چھوڑو چھوڑو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا بعد میں۔ جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے آج کہاں چلے گا ایسا، آج کہاں چلے گا، آج کا دور اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب جوان قرآن کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، جب امت مسلمہ کا ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی؟ عذاب اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اتر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، آپ سب اپنے آپ پر غور کیجئے، ذرا بتائیے تو صحیح، کس نے ایک مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کس نے قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اس مجمع میں کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہرگز کوئی نہیں ہوگا۔ کیا قرآن پاک صرف پڑھے جانے والی کتاب ہے جس اعتبار سے بہتر کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کسی اور کتاب کو پڑھ لیا جاتا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سمجھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے کلام کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کا حق ادا تب ہوگا جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہم قرآن پاک کو بغور مطالعہ کریں گے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ایک مومن اللہ کی ایک آیت کو پڑھے گا اور اس میں دیکھے گا، اس میں سوچے گا، اچھا میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر جب وہ پورے قرآن پاک پر عمل نہیں کر پائے گا، ایک ہی آیت پر عمل کرنا کرے گا، لیکن پورے قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک آیت پر عمل کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک کو
को सिखाए, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। जब हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, जब हम कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ेंगे, अपने घरों में एहतमाम करेंगे, सुबह का एहतमाम करेंगे तिलावत करने का, और कोशिश करेंगे डेली अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में कुरान पाक की कुछ आयतें इंतखाब करके डेली कोशिश करेंगे, बच्चों को बताएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बता रहा है, अल्लाह का कलाम हमें ये बता रहा है। जब आप बच्चों के सामने ये बात कहेंगे कि मेरा अल्लाह मुझसे और आपसे ये कह रहा है, आखिर 10 बातें सुनने के बाद आपका दिल खुद करेगा, जब मेरा अल्लाह मुझसे ये कह रहा है मैं कोशिश करूंगा अमल करने की। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमने कुरान पाक को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। रमजान की हालत में भी लोग कुरान पाक को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 11 महीनों में तिलावत तो होती नहीं है, रमजान के महीने में मुकम्मल पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुआ करवाते हैं, बस दुआ के बाद खत्म हो जाता है सब मसला, बस अब हम फारिग हो चुके हैं, अब हमें कोई इस चीज का हिसाब नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रमजान में 1000 मरतबा खत्म कीजिए, आप रमजान में तो 1000 मरतबा कुरान पाक को खत्म कीजिए, लेकिन अगर आप 11 महीने नहीं पढ़ रहे हैं, हरगिज़ आप कुरान पाक को नहीं पढ़ रहे हैं, हरगिज़ आप कुरान पाक पर अमल नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुरान पाक के मुताबिक नहीं चलते हैं, कुरान जो बातें कह रहा है आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, आप जुबानी एतबार से कुछ कह रहे हैं, आप किसी और के पीछे चल रहे हैं, आप किसी और को मान रहे हैं और बजाय कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोगलापन को नहीं चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोगलेपन को नहीं चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता है कि मेरा बंदा यहाँ भी चले, मेरा बंदा यहाँ भी चलेगा चले। आपने सुना होगा सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, अरे क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से का इनकार करते हो? जरा गौर तो कीजिए, हमारा हाल यही हो चुका है। हम किताब के, अल्लाह के कलाम के उस हिस्से को मानते हैं जो हमें पसंद होता है, जहाँ हम फंसते नहीं हैं वहाँ हम अल्लाह के कलाम की दलील देते हैं। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया है, लेकिन जहाँ हम फंस जाते हैं, जहाँ पर कुरान पाक का हुक्म सख्त हो जाता है, फारिज अनिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों से एराज कीजिए, जहाँ पर अल्लाह कहता है काफिरों से दोस्ती मत कीजिए, जहाँ पे अल्लाह कहता है इन यहूदी और इन नसरानियों से दोस्ती मत कीजिए, अल्लाह का कलाम जुर्रत के साथ बयान कीजिए, अल्लाह का हक जुर्रत के साथ बयान कीजिए, वहाँ हम हिकमत को लाते हैं, वहाँ हम नसीहत को लाते हैं। नहीं नहीं, अब हालात नहीं है, अब ये नहीं है, हम कुरान को नहीं बयान कर सकते हैं, तुम कुरान को नहीं बयान कर सकते हो तो कौन करेगा? याद रखो, अगर इस उम्मत ने अल्लाह के कलाम को बयान नहीं किया, अगर इस उम्मत ने अल्लाह के कलाम को बयान नहीं किया, जो हक कुरान पाक का है उसको बयान नहीं किया, याद रखो अल्लाह हमें अजाब में डालेगा। अल्लाह ऐसे अजाब में डालेगा जिस एतबार से बनी इसराइल को अजाब में डाला था, जिस एतबार से यहूदियों को अजाब में डाला है, जिस एतबार से नसरानियों को अजाब में डाला है, उसी एतबार से अल्लाह उम्मत को डालेगा, इस उम्मत को डालेगा जो कुरान की नाकदरी कर रही है, इस उम्मत को डालेगा जो कुरान की नाशुक्री कर रही है। जब रब का कलाम ये कहता है कि उठो पूरी दुनिया में अल्लाह के कलाम को बोलो, जब रब कहता है कि उठो और पूरी दुनिया में कुरान पाक का नारा लगाओ, कुरान पाक बताओ कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, आओ तस्लीम करो, आओ मानो। जिस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था और कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मुश्रिको, ए काफिरो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे। जब अल्लाह के रसूल ने ये नारा बुलंद किया था तभी जाकर कुफार उनके मुखालिफ हो गए थे, तभी जाकर यहूदी उनके मुखालिफ हो गए थे। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल भी खामोश रहते और ये बात नहीं कहते तो किसी को परवाह नहीं थी कि अल्लाह के रसूल दीन का दावत दे या ना दे, या अल्लाह के रसूल कुरान सुनाए या न सुनाए। याद रखिए, अगर हम भी अल्लाह के रसूल के मिशन को नहीं थामते हैं, हम इसी एतबार से खाना खा रहे हैं, इसी एतबार से पी रहे हैं, इसी एतबार से जी रहे हैं जिस एतबार से जानवर जीता है, जिस एतबार से बैल और गाय
जानवरें जीती हैं, जिस एतबार से भेड़ बकरियां जीते हैं, उसी एतबार से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हमें मरना है, हमें पता ही नहीं है हम दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, हमें पता ही नहीं है रब का कलाम क्या कहता है, हमें पता ही नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या कहती है। मुझे बताओ, क्या हम जानवर नहीं हैं, क्या हम काफिर नहीं हैं, क्या हम मुश्रिक नहीं हैं? इस्लाम से इस चीज का इनाम नहीं है कि हम कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये बात कह दें और हम पक्के मुसलमान हो गए, हम जन्नती बन गए, अब हमें जहन्नम में कोई नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है। इस्लाम अदल का निज़ाम है। इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत आदिल है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह देखेगा मेरे बंदे ने कितनी मुसीबतें झेली है। अभी आपके सामने जो बच्चा पहले तकरीर बयान कर रहा था, वो कह रहा था सहाबे किराम पर किस एतबार से मुसीबतें ढाई गई, सहाबे किराम को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी तपती हुई रेत पर लेटाया गया, कभी उनके जिस्मों पर अंगारे रखे गए, कभी उन पर गर्म पत्थर रखे गए, उनको चटाई के अंदर धुआं दिया गया। जब ये तकलीफें दी जाती हैं तब ईमान मुकम्मल होता है, तब ईमान कामिल होता है। और ये सहाबे किराम के साथ हुआ है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम अभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मिशन से जुड़े हुए नहीं हैं। जब हम अल्लाह के दीन को थामेंगे, जब हम शरीयत को थामेंगे और शरीयत को बयान करेंगे, जिस एतबार से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घसीटा जाता था, वो दिन दूर नहीं होगा, हमें भी घसीटा जाएगा। याद रखना, इस्लाम जो है तकलीफों का नाम है, इस्लाम जो है मुसीबतों का नाम है। आपको मुसीबतें ना आए, आपको और मुझे तकलीफें ना आए और हम बाज़ाब्ता खा रहे हों और पी रहे हों, और वहाँ से जब मर्जी आई तब नमाज पढ़ी, जब मर्जी आई तब रोजे रखे, जब मर्जी आई तब तिलावत की, जब मर्जी आई तब तस्बीह पढ़ी। जब बीमार हो गया, जब कोई इस दुनिया से चला गया, पूरा कुरान उसे बख्शवा दिया कि जन्नत में उसे ठूस दिया जाए। इस एतबार से कुरान पढ़ा जाता है और किसी मौलवी को बुलाया जाता है और ये समझा जाता है बस अब ये जन्नत में चला जाएगा। हरगिज नहीं। पूरी दुनिया में और पूरी जिंदगी में वो इंसान शराब पीता रहे, वो अल्लाह के अहकामात को तोड़ता रहे और बाद में उसके मरने के बाद हम ये समझे कि कुरान बख्शवा दे और अल्लाह ताला बख्श देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर दुनिया के कानून और अब के कानून में फर्क ही क्या रहा कि वहाँ भी इस एतबार से घोटाला होता है। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के दीन में भी घोटाला होता है। अल्लाह का निज़ाम आदिल है, आदिलाना है, मुनसिफाना है। वहाँ पर अदल होगा, वहाँ पर ये नहीं चलेगा ये शख्स मुसलमान है, इसने कलमा पढ़ा था, विरासती तौर पे मुसलमान था, अब इसे जन्नत में ले जाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे अल्लाह के नज़दीक कुरान पाक ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त इंसान, सबसे मुकर्रम इंसान वो है जो तक़वे वाला होगा, जो परहेज़गारी इख्तियार करने वाला होगा। वहाँ नहीं चलेगा मेरे साथ दादा इस्लाम कबूल किया था, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ वो इंसान चलेगा जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला हो। कोशिश कीजिए, जरा गौर कीजिए अपने आप पर, अपने आप को शरीयत का मुकल्लफ बनाइए, अपने आप को मुकम्मल आज से फैसला कीजिए कि मुझे इस्लाम पर चलना है। और फिर देखना जब आप इस्लाम पर चलेंगे कितनी परेशानियां आएंगी, कितनी मुश्किलात आएंगी। जब आपको परेशानियां आएंगी, जब आपको लोग कहेंगे अब ज्यादा ही इस्लाम वाला बना है, जब आपको लोग कहें ये जादूगर है, जब आपको लोग कहें ये पागल हो चुका है जो आज इस्लाम की बातें कर रहा है, जो आज कुरान के अहकाम की बातें कर रहा है, जो आज ये कह रहा है कुरान ये कह रहा है, जब ऐसी बातें कहेंगे समझ लेना कि आप हक पर हैं। क्योंकि कुरान कहता है हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों का ये गुमान है, वो ये समझ बैठे हैं कि वो ईमान लाएंगे, उसके बाद उन्हें आजमाइशों के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा, उन्हें तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी, उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता है। ईमान वाला जो होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, कलिमा हक को बुलंद करने वाला होता है, अफजल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइर, सबसे अफजल जिहाद ये है कि एक बादशाह के सामने जो जालिम बादशाह हो उसके सामने कहा जाए कि अल्लाह ये कहता है। इस एतबार से उमर ने ये बात कही थी, अल्लाह तअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादिन्नास इला इबादतिल्लाहिल वहदा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भेजा है इस दुनिया में जो आप जुल्म ज़्यादती के साथ इंसानों को अपनी पूजा कराते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भेजा है हम उनसे निकाल कर उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की
पूजा करवाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करवाए। ये जब तक ना एक मुसलमान के अंदर जुर्रत हो, जब तक ना एक मुसलमान के अंदर बेबाकी हो, तब तक हम उस पक्के मुसलमान नहीं है जिसको कुरान ने कहा है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न उन्हें गम होता है, न उन्हें डर होता है। वो डरते नहीं है अब होगा क्या, वो सोचते नहीं है अब होगा क्या, बल्कि वो कहते हैं रब ने ये बात कही है, मुझे कहनी है, चाहे कुछ हो जाए। दुनिया का कोई आदमी मुझे कुछ कहे, मुझे नहीं उससे परवाह है। अगर रब ने ये कही है, ये सच्ची है, मैं कहता जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ कर दिया जाए। तभी जाके वो सच्चा मोमिन हो सकता है। आज क्या वजह है? कुरान पाक की है जो आयत बार बार कहती है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न तुम्हें गम होगा, न तुम्हें परेशानी होगी। क्या वजह है? आखिर क्यों नहीं, और आखिर क्यों नहीं हम गालिब आ रहे हैं? आखिर क्यों हमें हमेशा मुसीबतें घेरी हुई है? आखिर क्यों हमारे अंदर कपकपाहट तारी है, हमारे अंदर थरथराहट तारी है? हम क्यों कांपते हैं? नमाज पढ़ने से भी कांपते हैं, रोजा रखने से भी कांपते हैं। अपने आप को डरते हैं कि अगर मैं ये कह दूं मैं अब्दुल्ला हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। कि अगर मैं ये कहूँ कुरान पाक अल्लाह का कलाम ये कहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखिए, खुद गौर कीजिए कि हमारा माशरा इतना बिगड़ा हुआ माशरा है, हमारा माशरा इतना गुमराह माशरा बन चुका है, हमारे जवान इतने बेशरम और बेहया बन चुके हैं। आप गौर कीजिए उन जवानों पर। हमारी गाड़ी चलती है, गाड़ी में गाने बज रहे होते हैं, ढोल बज रहा होता है। किसी मुसलमान को जरूरत नहीं होती बताने की कि तू बंद कर, लेकिन वही मुसलमान अगर दूसरी जगह पैदल चल रहा होता है और अगर उसके मोबाइल में कुरान पाक लगा होता है, फौरन जो ही काफिर आता है वो बंद कर देता है, पता नहीं क्या होता है। ऐसा ही होता है। लेकिन गाना सुनने वाला बाज़ाब्ता अल्लाह वाले के सामने गाना सुन रहा है, शैतान अपना काम कर रहा है। और जब मोमिन कोई अच्छा काम करता है, किसी गैर को देख के फौरन सर झुकाता है और सोचता है पता नहीं क्या हो जाएगा। हालत आज उम्मत मुस्लिमा की हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, रमज़ान मुबारक हमें इस चीज़ की तरफ दावत देता है कि हम मुत्तकी बने, हम परहेजगार बने, हम अल्लाह को मानने वाले बने, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखने, सिर्फ रमज़ान में इबादत करनी, रमज़ान में जल्दी उठना, रमज़ान में नमाज़ों का एहतमाम करना, रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करना और बाकी 11 महीनों में सोना और बाकी 11 महीनों में खाना और पीना भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, ये अल्लाह ताला के यहाँ में कामयाबी नहीं बन सकती है। ना अल्लाह ताला इससे खुश होगा, ना अल्लाह ताला हमें इसका कोई अज्र देगा। अल्लाह ताला तब अज्र देगा जब हम इस एतबार से रमज़ान गुजार रहे हैं, उसी एतबार से बाकी 11 महीने गुजारे। रमज़ान मुबारक के मुतालिक उलमा फरमाते हैं ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर बाज़ाब्ता एक मोमिन को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये कहा जा रहा है सुबह इतने बजे उठना है, इफ्तार इतने बजे करना है, तरावी इतने बजे पढ़नी है, तिलावत इतनी करनी है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। बाज़ाब्ता पूरी उम्मत जो है एक वक्त मुकर्रर पर इफ्तार करती है, वक्त मुकर्रर पर सहरी खत्म करती है। मालूम हुआ बाज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इज्तिमाइयत सिखा रहा है। इस एतबार से काम किया जाता है। इस एतबार से आपने देखा होगा कोई नौकरी हासिल करने के लिए पहले उसे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है इस एतबार से करना है, इस एतबार से करना है, इस एतबार से पढ़ाना है, इस एतबार से चलना है। और बाकी जो आने वाली जो उसकी ड्यूटी होती है ताकि वो आसान बन जाए, उसे पता रहे मुझे क्या करना है। उम्मत मुस्लिमा के लिए रमज़ान यही एक खासियत वाला महीना है कि ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर हर शख्स को बताया जाता है इस एतबार से आपके 11 महीने गुजरने चाहिए, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं, तभी जाकर। लेकिन याद रखिए अगर हमारे 11 महीने इस एतबार से नहीं गुजर रहे हैं, समझ लीजिए ये महीना हमारा ज़ाया हो चुका है। इस महीने में भूखा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस महीने में प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये असर आपको 11 महीनों में देखेगा। अगर इस रमज़ान का असर आपको 11 महीनों में दिख रहा है, समझ लीजिए हमारे रोज़े भी कबूल हो चुके हैं, अल्लाह ने हमारा इंतखाब कर दिया है। लेकिन अगर ये असर 11 महीनों में नहीं दिख रहा है, हमारे रोज़े ये फजूल में है, हमारा भूखा और प्यासा रहना फजूल में है। अल्लाह ताला को हमारे न भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्यों ऐसा करेगा? अल्लाह ताला को चाहिए कि एक बंदा जो है हकीकत में अल्लाह
العزت کا بندہ بن کر رہے, تبھی جا کے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا مومن بنائے, سچا مومن بنائے, سچا اسلام پر چلنے والا بنائے, اور اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. رمضان مبارک میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں اور جو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں کوتاہیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنائے, فرما بردار بنائے, اور جرأت سے اسلام کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دنیا یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے وقت آ چکا ہے, حق کہنے کا وقت آ چکا ہے. اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ حق ڈنکے کی چوٹ پر کہا جائے. اگر ہم اس وقت ڈرے رہے, ہم اس وقت گردن دبائے ہوئے رہے, ہم اس وقت گردنوں کو اڑیلے ہوئے رہے, سمجھ لیجیے ہم حق پر نہیں ہیں. اس لیے کوشش کیجیے, جانچ کیجیے, اپنے آپ کی فکر کیجیے, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے کہ مجھے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. اس لیے میں سچا مومن بنوں, میں سچا مسلمان بنوں, تبھی جا کر ہم